Hello and welcome back to your channel Phoenix Safari. My name is Abhishek and I believe you guys are doing well and studying properly. My dear kids, for past 2-3 days I could not upload any videos. Reason being I was traveling, so that's the reason. So those who are following me, really sorry. Aage se we're gonna be having more continuous video will be uploaded upon this channel. Okay, so today I'm going to start one new series and this is dedicated towards the people, the students who are preparing for JEE Advanced. Like I've started the JEE Mains ka series. Likewise, I'm going to talk about some PYQ from the JEE Advanced and the concepts related to those like questions. Also, I'm going to also input some questions from my end, जो मुझे लगता है कि हाँ this is going to be a good one और इसमें जो concept use कर गया है वो भी शायद use किया जा सके in the some of the questions for the mains advanced sorry. तो इसके साथ साथ हमारा JEE मेंस का भी चलता रहेगा और ये भी चलता रहेगा और if you guys want me to teach you some concepts आप मेरे को बताओ, I'm going to make videos on that as well. Anyways, so today's concept that I'm going to cover up and the PYQ of the topic that I'm using is the SHM. अभी हम SHM का चर्चा कर रहे हैं तो इसमें ही थोड़ा बात आगे बढ़ाते हैं. ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो कि JEE 1999 में पूछा गया था. 1993 आई बिलीव यू नो JEE 1993 में पूछा गया था. तो दैट टाइम वी डिडंट हैव मेंस एंड एडवांस टाइप का कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस नहीं था, तो इसको आप एडवांस का समझो. तो द क्वेश्चन सेज कि हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है in which two bodies are constrained to move attached with two springs. ऐसा हमारा सर्कुलर पाथ है बच्चों और let's suppose this is the diameter और ये हमारा सेंटर हो गया. ठीक है. Now that in this we have two blocks, two object, two masses हैं of let's say equal masses 1 kg, 0.1 kg. Masses was given as 0.1 kg. They are constrained to move in the circular path. Friction नहीं है और एक horizontal plane में रखा हुआ. ठीक है. This is kept in the horizontal plane. ये हमारा horizontal plane में रखा हुआ है. This is the horizontal plane में बच्चों रखा हुआ है. It is connected to one of the spring like this. ठीक है. और एक और spring जो है which is used to connect these two blocks, these two balls up ऐसे 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 ऐसे. ठीक है. Spring constant is given as 0.1 Newton per meter. Now the radius in which it is allowed to move, allowed to rotate, जो हमारा radius है बच्चों, that is given as 0.06 meter and the natural length of the spring, जो natural length of spring है, that is 0.06 pi meter. Now it is very important term to understand कि natural length अगर इतना दे रखा है which is equals to what, ये हमारा diameter के बराबर हो जाएगा, right? या सॉरी हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस के बराबर हो जाएगा. इट मींस कि नेचुरली अगर इन दोनों ब्लॉक्स को हम छोड़ देते हैं तो वो हमारा इस पॉइंट पे होता है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट होता है. सो दैट इज द मीन पोजीशन. ये जो हमारा इस पोजीशन पे आ जाएगा दैट इज गोना बी द मीन पोजीशन बच्चों. आई बिलीव आप समझ पा रहे होगे ना. सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई r. 2 पाई r इज हाउ मच 0.06 राइट. तो अगर हम इसके हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस को लें तो that is c by 2, that should be how much 0.06 pi. तो हमारा हाफ ऑफ सर्कमफेरेंस है. तो कहने का मतलब है कि शायद इसका यूज हम नहीं कर पाए क्वेश्चंस में, बट अगर ये ना दे रखा हो तो हम मेन पोजीशन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे. तो दिस इज व्हाट मींस कि इनिशियली अगर हम इनिशियली नहीं बोलेंगे मेन पोजीशन हमारा इस पॉइंट के अबाउट होगा. एक ब्लॉक यहां और एक ब्लॉक यहां, दैट इज गोना बी द मेन पोजीशन बच्चों. ध्यान देना इस बात को. इसको मान लो a, इसको मान लो b. ठीक है जी. अब इसको टाइम t is equals to 0 as the question said कि टाइम t is equals to 0 पे इसको 30 डिग्री पाई बाई 6 पुश किया गया, पुल किया गया, स्ट्रेच किया गया, जो भी बोलो, और इसको भी पाई बाई 6 पे उसको कंप्रेस करके छोड़ दिया गया. राइट. नाउ द मोमेंट यू लीव इट एट दिस पॉइंट, ऑब्वियसली इस पे कुछ रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा होगा बिकॉज इट इज गोना बी डूइंग सम एंगुलर SHM. राइट. तो इस पे एक रिस्टोरिंग बच्चों टॉर्क लग रहा होगा. बिकॉज दैट रिस्टोरिंग टॉर्क इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग. इसमें ग्रेविटी का रोल नहीं है बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ऐसे रखा हुआ. ठीक है. ऐसे गोल गोल और इसमें रखा हुआ है ऐसे. ठीक है. तो नाउ इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग अबाउट इट्स मेन पोजीशन. ऑल गुड बच्चों. तो ऐसे आएगा है ना. तो एम्पलीट्यूड हम डिसाइड करते हैं, एनर्जी हम डिसाइड करते हैं. तो इसका एम्पलीट्यूड ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, इसका भाग लिखा जा चुका है. तो भैया पाई बाई 6 ऊपर आप ना जाओगे. ठीक है. वापस आएगा जाएगा, वापस आएगा जाएगा अबाउट दिस मेन पोजीशन. इतनी बात समझ में आ रही है. मतलब कि कुल मिलाकर इसका जो ऑसिलेशन होगा ऐसे ऐसे होगा ना, इस पॉइंट पे ऊपर नीचे इस तरह करता रहेगा. सो टू फाइंड दिस ऑसिलेशन के बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे. फ्रीक्वेंसी निकालना है, उसका स्पीड निकालना है, जो भी निकालना है
उसके लिए अपन को पहली बात जो पता होना चाहिए, टाइम पीरियड निकालना है। जो पहली बात हमको पता होना चाहिए, द फर्स्ट थिंग व्हिच यू शुड नो इज द रिस्टोरिंग टॉर्क। अगर हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क मिल जाता है तो कहानी खत्म, ठीक है। एनीवेज हम आगे आएंगे उसमें, और भी डेटा दे रखा था क्वेश्चन में, आपको पहले वो बता देते हैं। रेडियस मैंने बता दिया, लेंथ बता दिया आपका, और क्या था, के बता दिया, मास बता दिया, और कुछ चाहिए था क्या इसमें? नहीं ना, और तो कुछ नहीं चाहिए जी इसमें। कुछ था क्या क्वेश्चन में? नहीं, और तो मेरे को कोई जरूरत ही नहीं पड़ रहा है, जरूरत ही नहीं है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो मास हो गया, के हो गया, आर हो गया, एल नॉट हो गया, ठीक है। अब इसको छोड़ दिया गया। अब आपको बताना इसका जो क्वेश्चन था पहला, फाइंड द फ्रीक्वेंसी, फाइंड फ्रीक्वेंसी, फाइंड फ्रीक्वेंसी। दूसरा आपका था जो इस पॉइंट पे जो ब्लॉक आएगा, व्हेन इट इज पासिंग द ब्लॉक द मेन पोजीशन, मतलब कि ए ब्लॉक यहां हो जाए और ए ब्लॉक यहां हो जाए, उस पॉइंट पे स्पीड निकालना आपको। स्पीड व्हेन blocks are diametrically opposite, diametrically opposite हो जाए तो उस पॉइंट को निकालना है कि स्पीड कितना होगा। मतलब कि ये जो ए है यहां पे होना चाहिए और बी है यहां पे होना चाहिए, उस पॉइंट पे ए और बी का स्पीड कितना होगा वो निकालना आपको, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोज हू हैज डन इट, एक बार फिर से आप पॉज करके वीडियो को बनाओ और सारे बातों को आप उसको आप जस्टिफाई करते हुए आगे बढ़ोगे, ठीक है। चलिए तो लेट अस स्टार्ट दिस वन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द रिस्टोरिंग टॉर्क। बच्चों रिस्टोरिंग टॉर्क निकालने के लिए क्या चाहिए मेरे को? आपका ए चाहिए, है ना। पहली बात तो कि कितना इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रखा है, कितना कंप्रेशन स्प्रिंग में हो रखा है। तो इफ इट इज आर, अगर ये आर है और ये थीटा मान ले, इन जनरल आपका हो जाएगा आर थीटा। लाइकवाइज यहां से भी बच्चों कितना हो जाएगा आर थीटा। तो इस कंप्रेशन के कारण इस पे फोर्स लग रहा होगा इस तरफ, टोटल कंप्रेशन कितना हो गया 2r थीटा। तो अगर हम कंप्रेशन मान ले x इज इक्वल टू मान ले वो हो जाएगा 2r थीटा। अच्छी बात है। तो दैट वुड अप्लाई अ फोर्स ऑन दिस, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में इस पे एक फोर्स लग रहा होगा बच्चों। अरे यार खुल जा सिम, आपको इस पे एक फोर्स लग रहा होगा, मान लो इसको हम अंडर कंसिडरेशन देख रहे हैं। तो नाउ एक तो फोर्स होगा इस पे, इस स्प्रिंग में कंप्रेशन के कारण। नॉट जस्ट दैट, इवन दिस स्प्रिंग इज गेटिंग इलोंगेटेड, राइट। अगर हम स्प्रिंग को अगर लीनियर आप देखो, याद करो, मैंने ऐसे क्वेश्चंस करवा रखे हैं आपको, है ना। तो अगर इसको हम इस तरफ थोड़ा शिफ्ट कर दें बाई एक्स, तो दिस विल गेट कंप्रेस्ड, तो इसमें फोर्स लगेगा इस तरफ, राइट, एंड दिस विल गेट इलोंगेटेड, तो दिस आल्सो इज गोइंग टू अप्लाई अ फोर्स ऑन दिस इन दिस डायरेक्शन। तो टोटल फोर्स इसमें बच्चों कितना होगा बिकॉज ऑफ दिस एज वेल एज बिकॉज ऑफ दिस, और जस्ट बिकॉज दे हैव द सेम इलोंगेशन, तो दोनों का फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है एज वेल एज द डायरेक्शन दोनों सेम रहेगा। तो टोटल जो फोर्स बच्चों इस पे लग रहा होगा, अगर हम ध्यान दें तो टोटल जो फोर्स लग रहा होगा वो 2 times of x into k। आप समझ रहे हो इस बात को ना, 2 times x क्यों है? एक तो इसके कारण और दूसरा इस ब्लैक वाले स्प्रिंग के कारण भी फोर्स लग रहा होगा, तो 2x k, ठीक है जी। अब देखो रिस्टोरिंग टॉर्क निकाल लेते हैं। तो रिस्टोरिंग टॉर्क के लिए क्या चाहिए? परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द ब्लॉक विद द सेंटर ऑफ द पॉइंट वेयर द फोर्स इज अप्लाइड, और सेंटर से जो भी लाइन ज्वाइन है उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम लोग फोर्स में यूज करते हैं टू फाइंड द टॉर्क। एंड लकीली हमारे पास जो फोर्स इस पे लग रहा होगा, सिंस इट इज एग्जीक्यूटिंग अ सर्कुलर मोशन, है ना, तो हमारे पास जो फोर्स लग रहा होगा वो ऑलरेडी टेंजेंशियल ही है, दैट इज ऑलरेडी टेंजेंशियल। तो अगर टेंजेंशियल है बच्चों तो टॉर्क निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये हमारा फोर्स हो गया 2xk और रेडियस हमारा r हो गया, राइट। तो लेट अस पुट द वैल्यूज, हमारे सारे वैल्यूज यहां पुट कर देंगे बच्चों। तो 2 times of x कितना हो गया बच्चों? x हो गया आपका 2r थीटा, राइट। तो 2 into 2r theta into k into r, which means the restoring torque प्यारे बच्चों that is going to be 4r square k times of theta। चलो बहुत अच्छी बात हो गया इतना, है इतना बात हमने कर लिया सॉल्व। अब देखो टॉर्क इज इक्वल्स टू व्हाट? टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। अगर हम डायरेक्शन को देखें तो अल्फा हमारा थीटा किस तरफ है? इस तरफ है। तो अगर इसको थीटा के टर्म्स में लिखते हैं तो अल्फा और थीटा हमारा ऑपोजिट में जाएगा, राइट, और टॉर्क भी थीटा के ऑपोजिट में आएगा, तो साइन कैंसिल होगा। तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड पे फोकस कर रहे हैं, तो आपका टॉर्क हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर थीटा, और ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। और दैट इज द रीजन व्हाई आई कीप सेइंग ये रोटेशन को आप स्किप नहीं करोगे। ऑल गुड बच्चों। तो हमारा टॉर्क का वैल्यू कितना है? 4r स्क्वायर k टाइम्स ऑफ थीटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस सेंटर कितना हो जाएगा जी? mr स्क्वायर, राइट ना। तो हमारा हो गया mr स्क्वायर बच्चों, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, थीटा रहने दो, तो थीटा थीटा तो चला गया, खेलने चला गया ना। व्हाट वी नीड टू फाइंड इज ओमेगा।
आर स्क्वायर भी चला गया, इसको भी हटा दो जी। तो ओमेगा कितना हो गया बच्चों, 4k अपॉन m का अंडर रूट, ये हो गया आपका ओमेगा। नाउ लेट अस पुट द वैल्यूज, और फिलहाल तो या फिर ऐसे कर लो, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है जी, 2πf। तो फ्रीक्वेंसी निकालना मेरे को, आई वांट टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी, तो आप प्लीज ध्यान रखना वो हो जाएगा 1/2 ओमेगा। और ओमेगा कितना दे रखा है, 4k, 4 आ जाओ बाहर, 2 बाहर आ गया, अंडर क्या हो गया जी, k अपॉन m किलोमीटर। 2 से 2 गया, k का वैल्यू कितना है 0.1, m का वैल्यू कितना है 0.1, they would get cancelled and leaving you frequency is equals to 1/pi। ये आपका हो गया जी फ्रीक्वेंसी। पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, बड़े मजे में, है ना, कोई दिक्कत बच्चों इसमें? द फर्स्ट क्वेश्चन इज इजिली डन नाउ, हमने निकाल लिया फ्रीक्वेंसी। सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, सेकेंड पार्ट सेज दैट फाइंड द स्पीड when blocks are diametrically opposite, find the phase when the, तो अच्छी बात है, मतलब कि मेरे को क्या चाहिए, ये हमारा जो ब्लॉक है वो यहां आ जाए या फिर यहां, दोनों यहां पे है ना, दोनों यहां पे आ जाए, उस पॉइंट पे आपका जो स्पीड है वो हमको निकालना है बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है। तो आप कैसे करोगे, थोड़ा सोचो, इसमें क्या हम लगाएं v इज इक्वल्स टू ओमेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ऐसा कुछ करें क्या? इज दैट रिक्वायर्ड ओवर हियर? क्या और भी कुछ कंसेप्ट लगा सकते हैं क्या हम लोग? टोटल एनर्जी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं क्या? अब देखो दो तरीके अपने पास है। एक तो हमको पता होता है कि जो आपका वेलोसिटी होता है ओमेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ऐसे मान के चलो, और हमारा एंगुलर में क्या हो जाएगा, आपका जो वेलोसिटी होगा थीटा, ऐसे मान लो ओमेगा थीटा नॉट स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर, ऐसे आप कर सकते हो। दो तरीके मेरे पास है ना। ओमेगा का वैल्यू दे रखा है 2πf, सॉरी 4k अपॉन m, तो ओमेगा का वैल्यू कितना है, 4 कट के 2 बाहर 2 आता है, ओमेगा का वैल्यू हमारे पास 2 आ रहा है, राइट। तो एक तो हमारा ओमेगा यहां से आ सकता है। थीटा नॉट इनिशियल कहां पे था बच्चों, ये एम्पलीट्यूड कितना है π/6 से, और हमारा ये थीटा उस पोजीशन पे कितना हो जाएगा, अगर इस पोजीशन पे है तो थीटा हमारा 0 हो जाएगा जी, उस पॉइंट पे हमारा थीटा 0 हो गया। एक तो वैसे बन सकता है ना, करेक्ट, थीटा हमारा यहाँ पे 0 हो जाएगा। और क्या दे रखा है ओमेगा, ओमेगा तो हमारा निकल सकता है। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा देखें हम लोग करें कि इसके पास जो एनर्जी है जो इस पॉइंट पे है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, राइट, इस पॉइंट पे, और क्योंकि वो पोटेंशियल कन्वर्ट होगा काइनेटिक में, और क्योंकि इट इज अ मेन पोजीशन पे हमको पता है पोटेंशियल एनर्जी होता नहीं है, दैट इज ऑल अबाउट द काइनेटिक एनर्जी होता है। तो कैन आई जस्ट यूज द दैट रिलेशन ऑफ पोटेंशियल टू काइनेटिक, कर सकते हैं ना। तो ध्यान दो इसको, एक तो तरीका आप ऐसे कर सकते हो, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा 1/2 k, x कितना हो रखा था, x था हमारा 2r थीटा, हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, इस तरफ से r थीटा, इस तरफ से r थीटा, और क्योंकि ये हो गया आपका 1/2 kx स्क्वायर, राइट जी। एंड नॉट जस्ट दिस, भाई साहब इनके कारण भी कुछ था ना, ब्लैक स्प्रिंग के कारण भी था, तो दैट वुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सेम इन डायरेक्शन, तो 1/2 kx स्क्वायर टाइम्स 2, और हमारा पोटेंशियल हो गया। इस पॉइंट पे अगर हम पहुंच जाएं ब्लॉक को लेकर, इस पॉइंट पे इसके पास एक वेलोसिटी रहेगा v, तो काइनेटिक एनर्जी एट द मेन पोजीशन जो होगा बच्चों, दैट इज गोना बी हाफ ऑफ mv स्क्वायर। आप इन दोनों को इक्वेट कर दोगे, आपका कहानी हो जाएगा जी। आपको x का वैल्यू पता ही है, और x का वैल्यू अगर आपको डेटा में चाहिए, आपको 2 पता है, आपको r पता है, आपको थीटा पता है, सारा वैल्यू पुट करके कहानी खत्म कर दोगे, ठीक है। तो आप इन दोनों को इक्वेट कर दोगे, आपका मिल जाएगा 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कैंसिल, हटाओ जी इसको, kx स्क्वायर, करेक्ट है जी। तो v आपका हो जाएगा 2kx स्क्वायर अपॉन m का रूट, आप जो भी इसको सॉल्व करोगे वही आपका आंसर बच्चों आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना। चलिए इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब थोड़ा कहानी को आगे बढ़ाते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक अच्छा क्वेश्चन है, इस पे भी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। अब चलो अब एक थोड़ा आसान क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक इजी क्वेश्चन और एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन का हम लोग समावेश रखेंगे, ताकि आपको भी ऐसा ना लगे कि यार ये तो मुश्किल हो गया है ना। बट दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई एडवांस्ड, उनको ये सारी चीजें मुश्किल नहीं लगनी चाहिए ना। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये सब सारी चीजें मुश्किल नहीं लगनी चाहिए, और लग रही है तो और भी थोड़ा सा मेहनत का आपको जरूरत है ना, आपको थोड़ा जरूरत है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
ए हो गया भैया, चलो 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 साफ हो जाओ, चलिए ये साफ हो गया, ठीक है जी। अब हमारा एक जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो जेई 2009 में पूछा गया था, 2009 में पूछा गया था। इसको देखते हैं। एंड इट सेज दैट एक आपको डायग्राम दे रखा था और उसका कुछ ऐसा था, है ना, मान लो ऐसा कुछ, ठीक है। और दिस इज द एम्पलीट्यूड 1 मीटर का था, है ना। और ये जो हमारा है, अरे भैया इधर आ जाए ना, ये जो नेगेटिव वाला है वो -1 का, ठीक है। एंड दिस इज द टाइम है और ये हमारा एम्पलीट्यूड एक्सिस है, ठीक है। ये जो टाइम है 4 0 और आपका 8 हो गया और ये आपका 12 ऐसे दे रखा था, ठीक है जी। पूछा गया है कि फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 4/3 सेकेंड। पूछा गया क्या इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है एट टाइम इज इक्वल टू 4/3 सेकेंड पे कितना होगा। और आपके चॉइसेस भी दे रखा था बच्चों, तो चॉइसेस प्लीज लिख लो, आप फिर इसको ट्राई करना। √3/32 पाई स्क्वायर था आपका, -1/32 पाई स्क्वायर है और दे रखा है पाई स्क्वायर अपॉन 32 और लास्ट है नेगेटिव ऑफ √3/32 पाई स्क्वायर। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। एक बॉडी है जो कि एसएचएम कर रहा है, ऐसा कुछ आपका दे रखा है, ठीक है। और आपको पूछा गया कि टाइम t इज इक्वल टू 4/3 सेकेंड्स पे आपका एक्सेलरेशन कितना होगा उस ब्लॉक का, है ना। तो इसके तरीके देखो, आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो, पॉज द वीडियो और एक बार ट्राई कर लो, मुश्किल नहीं है, पॉज द वीडियो। चलिए, आई बिलीव कि आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा और फिर इसको साथ में करते हैं। देखो, ध्यान देने वाली बात है, इसको तरीके बहुत है करने का, ठीक है। जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे समझ में आ रहा है इसमें, कि आप क्या कर सकते हो कि दिख रहा है कि टाइम 0 पे ऑब्जेक्ट का मेन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, राइट। टाइम 0 पे ऑब्जेक्ट है जो मेन पोजीशन पे है, इट मींस इनिशियल फेज कांस्टेंट जो हम मानते हैं वो हो गया 0 इस केस में, राइट। इफ आई कुड राइट द इक्वेशन, इसका इक्वेशन लिख पाए तो कोई मुश्किल बात नहीं है। आपको दिख रहा है कि स्टार्ट करता है यहां से, कुछ ग्राफ दिया है, इफ दे हैव गिवन द ग्राफ, लेट्स मेक द यूज ऑफ इट, राइट। तो यू कैन सी इट्स कंप्लीटिंग वन साइकिल इन हाउ मच टाइम, 8 seconds, which clearly tells me that the time period has to be 8 seconds. इतनी बात हमको समझ में आ रही है। पूछा गया है कि टाइम 4/3 पे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना है, तो 4/3 क्या हो गया, कहने की मान के चलो इधर है ना, अभी भी मेन पोजीशन के पहले ही, राइट। इसको थोड़ा और हम समझे, लीनियर ग्राफ पे देख ले, इसको हम ऐसे कर ले, दिस इज माई मेन पोजीशन बच्चों, और अगर हमारा एक्सट्रीम है और ये माइनस एक्सट्रीम है, विच इज गोना बी 1 1, ये 1 का एम्पलीट्यूड है, राइट। तो फ्रॉम हियर टू हियर, बैक टू दिस प्लेस एंड बैक टू दिस पॉइंट, इस पूरे क्रियाकलाप को करने में जो टाइम लग रहा होगा दैट इज गोना बी इक्वल टू 8 seconds, 8 seconds, which means my dear kids, it should be taking 2 seconds to go from here to here, and then 2 seconds to go from here to main position, back to the extreme 2 seconds, and back to this main position 2 seconds. और दे रखा है कि टाइम t इज इक्वल टू 4/3 सेकंड्स पे है, मतलब कि ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं हमारा इधर ही गई है, ठीक है, इट्स गोइंग टुवर्ड्स राइट। इतनी बात तो समझ में आ रही है। सो इट इज समवेयर देयर, ये कहीं ना कहीं हमारा इस तरफ है। और वी नो दैट x इज इक्वल टू व्हाट, a sin ऑफ ओमेगा t, क्योंकि इस केस में फाई नॉट 0 है, तो हमारा इक्वेशन ऐसा हो गया। कहानी क्लियर है ना, अच्छी बात है। अब उनको पूछा क्या गया, एक्सेलरेशन पूछा गया ना, तो एक्सेलरेशन का जो हम पता है हमें कि एक्सेलरेशन इज व्हाट, minus of omega square x. So I just want to find the value of x किस टाइम पे, टाइम t is equals to 4/3 पे। अगर x मिल जाएगा मेरे को यहां से और ओमेगा हम निकाल लेते हैं तो हमारा कहानी खत्म, मतलब इस क्वेश्चन का कहानी खत्म है ना। ओमेगा निकालना तो मुश्किल काम नहीं है। t is equals to what, 2 pi upon omega, t is given as what, 8 second, 8 is equals to 2 pi upon omega, which means omega should be बच्चों pi/4। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई, ओमेगा निकल गया pi/4, करेक्ट है ना जी। अब x निकाल लो, x किस पॉइंट पे, ऑब्जेक्ट का पोजीशन मेरे को चाहिए, t इज इक्वल टू 4/3 पे मेरे को चाहिए ऑब्जेक्ट का पोजीशन, तो इसको यूज करके एट t इज इक्वल टू 4/3 सेकेंड्स द वैल्यू ऑफ x क्या है बच्चों, दैट्स गोना बी हाउ मच, a का वैल्यू कितना है बच्चों, a का वैल्यू 1 है, राइट, एम्पलीट्यूड 1 है, 1 sin ओमेगा इज हाउ मच, pi/4।
पाई बाय 4, टी का वैल्यू कितना बच्चों 4/3, टिकम है ना। सो पाई बाय 3 60 डिग्री हो गया, sin 60 इज √3/2 व्हिच मींस द वैल्यू ऑफ x शुड बी √3/2। ये हमारा अगर मीटर में मान लेते तो मीटर में, सेंटीमीटर मान लो सेंटीमीटर में, तुम हटा दो यूनिट को, यूनिट से क्यों ही पंगा लेना जी, करेक्ट। तो भैया आपका एक्सेलरेशन निकालना कोई मुश्किल काम है क्या? ओमेगा मेरे पास है, x मेरे पास है, तो एक्सेलरेशन कितना जगह प्यारे बच्चों, दैट एक्सेलरेशन शुड बी नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 16 with a negative sign, of course, please do not miss this negative sign, and √3/2 times of √3/2, which means a should be बच्चों negative of √3/32 pi square. Well, that brings us to the correct answer of D4 Doberman, है ना। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया बच्चों, ध्यान समझ में आ रहा है ना। अच्छा, look at these two choices, they only differ with a by a negative sign, है ना। वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव साइन के कारण डिफर कर रहे हैं, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। और आपको दिख रहा होगा कि ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन कितना बढ़ रहा है एंड वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में है बच्चों, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में है, राइट। तो आप समझ रहे हो कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव आना चाहिए, आप पॉजिटिव में गलत में मत फंसियो, राइट। अगर ऑब्जेक्ट यहां ना होकर यहां पे होता तो वापस आ रहा होता तो दैट कुड बी डिफरेंट, है ना। यू हैव टू वेरी वेरी केयरफुल, सारे बातों को समझ लो, इसलिए मैंने पूरा इसको समझाया है। और रही बात आगे चलने की, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। चलो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, या फिर लेट्स डू वन थिंग, टाइम कंस्ट्रेंट, अभी मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा, सो देन आई एम गोना सॉर्ट ऑफ use discuss more questions, abhi rehne do, let's stop here only, just 2 questions for this one, another video is going to come tonight itself, आएगा, उसमें आपको मैं 3-4 अच्छे क्वेश्चन से डिस्कस करूंगा, ठीक है बच्चों। एंड ऑल्सो आई एम गोना डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पेंडुलम का मैंने फिजिकल पेंडुलम नहीं पढ़ा है, आई थिंक, बिकॉज इन द एडवांस्ड यू विल नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल पेंडुलम, I'm going to discuss over there. All good बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep learning and keep studying and do not forget to like, share and subscribe if you like the way I teach बच्चों। All good, चलो मिलते हैं, take care, bye everyone.